وجود اقدس اس کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے بھی آپ وجہ تخلیق کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، فرمایا کہ میرے محبوب لولاک ما خلقت الافلاک، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ کائنات کا نظام ہی نہ بناتا۔ آپ اس کائنات کی تخلیق کا سبب اور باعث ہے، اور آپ کا وجود اقدس اس کائنات میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہاں سے آپ اوپر گئے تو کائنات کی نبضیں رک گئیں، کائنات ٹھہر گئی، کائنات ساکت ہو گئی۔ جب واپس آئے تو روح دوبارہ دوڑ گئی، اس لیے فرمایا بریک جب لگ گئی تو دوبارہ وہی سے زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ پھر قرآن مجید نے لفظ سبحان سے اس واقعہ معراج کو شروع کیا ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے، وہاں سے حج تک پہنچ جائے۔ فرمایا کہ سبحان الذی، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ وہ ذات لے کے جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ وہ ذات سبحان ہے، ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے وہ پاک ذات ہے جو لے کے جا رہی ہے۔ تو آپ نے یہ جو سفر کیا معراج کا، میں نے کہا یہ براق کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے۔ براق ایک جنت کی سواری ہے، گدھے سے ذرا بڑی، کھچر سے قدر چھوٹی، اور جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سواری لے کے آئے، لیکن اس سے قبل ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی السلام کو معراج کی رات لے جانے کے لیے آئے تو دروازے سے داخل نہیں ہوئے، چھت پھاڑ کر داخل ہوئے، اور یہ اشارہ تھا کہ حضرت آج کا سفر زمین پر نہیں اوپر کی طرف ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے مولا میں تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں؟ آواز دے کر، ڈونڈی ہلا کر، فرمایا نہیں، تم جا کر میرے محبوب کے قدموں کو بوسے دینا، میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی۔ جبرائیل امین نے اپنے نورانی لبوں سے میرے آقا کے قدموں اور تلووں کے بوسے دیے، اس انداز سے آپ کو بیدار کیا۔ پھر براق کے ذریعے آپ پہنچے مسجد اقصی میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود، آپ کے استقبال کے لیے وہاں حاضر۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین نے اذان کہی جو آج ہماری مساجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہے، یہی اذان جبرائیل امین نے کہی۔ پھر اس کے بعد اقامت کہی گئی، اب وقت امامت تھا۔ سوچا جا رہا تھا کہ شاید آدم علیہ السلام آگے آئیں گے اور مصلی امامت سنبھالیں گے، کیونکہ وہ انسانیت کے باپ ہیں، مسعود ملائکہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، پہلے انسان ہیں، لیکن انہیں بھی حوصلہ نہیں تھا کہ مصلی پہ آئیں۔ نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آدم ثانی ان کا لقب ہے، مگر ان کی بھی مجال نہیں کہ مصلی پہ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، جد الانبیاء کا لقب پانے والے ہزاروں پیغمبر جن کی نسل میں آئے، وہ بھی وہاں موجود، اللہ کے خلیل، مگر نہیں آقا کی موجودگی میں اسے مجال کے مصلی امامت پہ آئیں۔ جبرائیل امین آگے بڑھے، آقا کا ہاتھ تھام کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے یہی تو وہ لکھا نا کہ آخر انبیاء علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ اللہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروا دے، اپنی محبوب کے
बल्कि उस आखिरी उम्मत हमें अता फरमा दीजिए। फरमाया नहीं, मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह फिर उस उम्मत में हमें पैदा कर दीजिए। एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी नबी आखिर ज़मान की मुलाकात की। तो मिराज की रात अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को आपका दीदार करवा दिया और आपके पीछे नमाज तमाम अंबिया ने पढ़ी और नबी सामने सूरत फातिहा पढ़ी और अंबिया ने पीछे खड़े होकर सुनी। इस तरीके से नमाज अदा की गई और आप इमामुल अंबिया भी बन गए, इमामुल किबलतैन भी बन गए। उसके बाद फिर सफर उरूज शुरू हुआ, आसमान का सफर। लेकिन उससे कबल एक बात बड़ी अहम है, कुरान मजीद ने जिसकी तरफ इशारा किया, ये मिराज हमने क्यों करवाया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी कुदरत की निशानी अपने हबीब को दिखाएं। चुनांचे रिवायात में आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसी सफर मिराज में मेरा गुजर एक ऐसी कौम पे हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों को ऐसे जख्मी कर रहे थे, चीर रहे थे और अपनी छातियों को भी खून आलूद कर रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? जवाब में कहा कि हजरत ये वो लोग हैं जो गीबत का गुनाह करते हैं, उनकी ये सजा उनको दी जा रही है और आपको दिखाई जा रही है। इसी अल्लाह के महबूब ने गीबत से फिर मना कर दिया। अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जिना से भी बदतरीन गुनाह है, इसलिए कि जिना हक़्क़ुल अब्द है। तौबा करने से ये गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक वो बंदा माफ न करे इसकी आपने गीबत की है। इससे गीबत से अपने आप को बचाइए। और ये कुरान मजीद ने इसकी गवाहत को बयान करते हुए फरमाया कि मुझे बताओ कोई ऐसा बंदा है जो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? जैसे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना नापसंदीदा अमल है, इससे भी बुरा काम है किसी गीबत करना। तो गीबत से इतराफ। फिर फरमाया, मेरा गुस्सा एक ऐसी कौम पे हुआ जिनके सर कुचले जा रहे थे, जिन वो लेटे हुए और कोई बंदा आता है भारी पत्थर उठाकर उनके सर पे मारता है, सर कुचला जाता है, पत्थर आगे चला जाता है, वो पत्थर उठाने दोबारा जाता है और सर उनके बरामद हो जाते हैं, फिर सर पे पत्थर लगता है। इस अंदाज से उनके सर कुचले जा रहे थे। आपने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन है? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज से गाफिल होकर लेटे रहते हैं और नमाज से कज़ा कर देते हैं। दोस्तों, नमाज का एहतमाम करो। हमने ये बात बारहा कही कि नमाज हमारे ईमान की मुहाफ़िज़ है, नमाज हमारे किरदार की मुहाफ़िज़ है, नमाज हमारी सेहत और जान की भी मुहाफ़िज़ है। और इसका तर्क कर देना, छोड़ देना बिला उज़र बहुत बड़ा गुनाह है। तो बेनमाजियों की सजा नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात इस अंदाज से देखी कि बेनमाजियों के सर कुचले जा रहे थे। फिर फरमाया, मेरा गुस्सा एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके पेट बड़े बड़े थे जैसे पूरा एक कमरा होता है, और उस पेट के अंदर, कमरा नुमा पेट के अंदर सांप चल फिर रहे थे जो बैठ से नजर आ रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन है? फरमाया ये सूदखोर है। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है। पूरे कुरान का आप मुताला करें, बड़े बड़े गुनाहों की सजा भी कुरान ने बताई है, रोका भी है, लेकिन किसी गुनाह के इर्तिकाब करने वाले से ऐलान जंग अल्लाह उसके रसूल का नहीं सिवाय सूदखोरों के। ये सूदखोर सूद लेने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। और हमारे रसूल लिखा है, जिस बंदे के साथ अल्लाह उसके रसूल की जंग शुरू हो जाती है फिर वो बंदा ईमान से मालूम हो जाता है। खुदारा इस गुनाह से बचना चाहिए। और इस सूदखोर आदमी की ना नमाज कबूल है, ना उसकी कोई हज उम्रे कबूल है, ना उसके सदकात खैरात कबूल है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की हमला का वाक़या मुझे याद आ गया। 15 शबान अभी आने वाली है। इसी तरह फरमाते हैं 15 शबान की रात थी और मेरे दिल में इरादा पैदा हुआ मैं अपने वालिद की कब्र पे कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ के दुआ मफ़त करके आऊं।
कहते मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, एक कब्र के पास से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे उसको गुस्सों के जरिए और हथौड़ों के जरिए मारा जा रहा है, और आगे से वो बंदा चीखता भी है, चिल्लाता भी है, रोता भी है। साथी भी कहता यार मैं नमाज़ भी तो पढ़ता था, यार मैं रोजे भी तो रखता था, मैंने हज भी तो किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे मुसलसल मारा जा रहा था। आवाज इतनी खौफनाक थी, मंजर ऐसा भयानक था कि मैं डर गया। जिस मकसद के लिए मैं जा रहा था वो भूल गया और मैं वहां खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद यूं सुबह सादिक होती चली गई, कब्र से आवाज आना बंद होती चली गई, चुराची आवाज बंद हो गई, सुबह सादिक हो गई। मैंने कब्र पर निशान लगाया, करीबी आबादी में जाकर लोगों को बुलाकर कब्र दिखाकर पूछा बताओ यार किसकी कब्र है। लोगों ने कहा जी आप क्यों पूछते हैं। फरमाया कि मैंने इसकी कब्र में अजाब महसूस किया। कहा ये तो फलां हाजी साहब की कब्र है। ये हाजी साहब की? तो हाजी साहब क्या करते थे? पता चला जी हाजी साहब सूदी कारोबार करते थे। सूदी कारोबार की वजह से न नमाज़ें कबूल, न रोज़े कबूल, न ज़कातें कबूल, न हज उम्रे कबूल। इससे दोस्तों सूद से इतराफ और अल्लाह के महबूब को मिराज की रात सूदखोरों की सजा दिखाई गई। फिर इसी तरीके से फरमाया मेरा गुसर एक ऐसी कौम पे हुआ जिनकी जुबानें काटी जा रही थी और लोहे की और आग की कैंचियों के साथ मेरे जिब्रील से पूछा कि यार ये कौन है। फरमाया आपकी उम्मत के बेअमल मौलवी जो कहते कुछ है करते कुछ है, जिनकी जिंदगी में मुनाफिकत और निफाक पाया जाता है, ये उनका किरदार है और उनकी ये सजा दिखाई जा रही है। इस तरह के बेशुमार अजायब बात आपने देखे, ताहम बताना ये है कि ये अजायब कुदरत थे जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाने थे। खुलासा इस मिराज में ये दुआ समाज कीजिए, आपने जन्नत भी देखी इस रात और जहन्नम को भी देखा। जन्नत कहाँ है और जहन्नम कहाँ है? जहन्नम नीचे जमीन में तहत सरा में, और जन्नत के सातवें आसमान की जो सातवां आसमान है इसको आप समझे कि जमीन है जन्नत की, ऊपर अर्श है, ये जन्नत का आसमान है। तो गोया कि अर्श के नीचे सातवें आसमान के ऊपर जन्नत, और आपने जन्नत को देखा। जन्नत में गए और फरमाया वापसी पे बताया कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला को उमर मैंने जन्नत में तेरा खूबसूरत महल देखा और मैं चाहता था कि अंदर भी चला जाऊं, लेकिन तेरी गैरत याद आ गई, मैं वापस आ गया। आज हजरत आपके बरकत से आपके सदक़े से हमें जन्नत मिली है, हमने आपकी क्या गैरत करनी थी। हजरत आप तशरीफ ले जाते मेरे घर के अंदर, उसी मिराज की रात आपने किसी के चलने की आहट जन्नत में महसूस की। जिब्रील को रोककर पूछा कि जिब्रील ये कौन है मुझसे पहले जिसके चलने की आहट आ रही है। जिब्रील अमीर ने कहा हज़रत ऊपर कोई नहीं है, ये आपका गुलाम बिलाल मक्का की सरजमीन पे चल रहा है और उसके चलने की अदा अल्लाह को पसंद आई, जन्नत में सुनाई दे रही। तो ये जन्नत भी आपने देखी, जहन्नम भी देखी। ताहम आप अर्श पे गए, अल्लाह ने फरमाया उदरो मिन्नी, मेरे महबूब करीब आ जाइए। मैं और करीब हो गया, हुक्म हुआ उदरो मिन्नी, और करीब आ जाइए। मैं और करीब आ गया। फिर फरमाया उदरो मिन्नी, महबूब और करीब आ जाओ। मैं और करीब आ गया। अगली बात बिला तशरीह अर्ज करने लगा हूँ, हदीस की किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला के मैं कुर्ब में पहुंचा, अल्लाह ने अपना दस्ते रहमत, अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। 14 तबक मेरे सामने रोशन हो गए और दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने कलेजे में महसूस की। फिर उसके बाद अब बहस चली कि मिराज की रूह क्या है। मिराज की रूह दो बातें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे महबूब आए हो तो क्या लाए हो। आपने फटाफट अत्तहियात पढ़ना शुरू कर दिया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह मेरी जुबानी बातें, मेरी बदनी बातें, मेरी माली बातें अल्लाह तेरे लिए इबादत का तोहफा लेके आया हूँ। जवाब में अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि महबूब आप 3 चीजें लाए हैं,
अत्तहियात भी, व सलावात भी, व तय्यबात भी, तो 3 इनाम मेरी तरफ से भी हो गए। अस्सलामु अलैका सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, सलाम भी, रहमत भी, बरकत भी, ये मैंने आपको अता फरमा दी। लेकिन वहां भी आका करीम को अपने गुनहगार उम्मत याद आ गई। फिर आपने आगे से पढ़ दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह हमारे ऊपर भी सलाम और तेरे नेक साले बंदों पर भी सलाम है। तो मेराज की रात ये गुफ्तगू हुई है। चुनाचे हासिल मेराज का 2 बातें हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, रअयत तो नूरा, मैंने अपने रब के नूर को देखा है, और ये दीदार इलाही हुआ है। इस पर एक अलग बहस चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो दीदार न हुआ तूर पर, आपको कैसे हो गया? हमने कहा कि जमीन पर कोई शख्स अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन हमारे महबूब ने अल्लाह को अर्श पर देखा है, आलम बाला पे देखा है, और आलम बाला पे खुदा को देखा जा सकता है। एक दीदार इलाही हुआ, और दूसरा फरमाया कि अल्लाह से हम कलामी हुई, लिहाजा अब आइए कि उम्मत के लिए फिर आप क्या लाए। 3 तोहफे इस उम्मत के लिए मिराज की रात अता किए गए। एक तो 50 नमाजी इब्तिदान, फिर बार बार आपके वापस जाने से उस शाम की फरमाइश पर 5-5 कम होती रही, आखिरकार 5 नमाजें रह गई। फरमाया कि मेरे महबूब आपका जो उम्मती 5 का एहतमाम करेगा सवाब 50 का पाएगा। ये 5 नमाजें ये मिराज की रात का तोहफा है, और इसलिए नमाज को मोमिन की मिराज भी कहा गया। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह को कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह से हम कलाम तो हो सकते हैं ना। इस हदीस पाक में आया जो शख्स ये चाहता है मैं अल्लाह से हम कलाम हूँ, उसे चाहिए कि नमाज पढ़े। नमाज से अपने रब से हम कलाम होता है। चुनाचे एक हदीस है, जब नमाज कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। बंदा कहते हैं अर्रहमान रहीम, जवाब मिलता है अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाते मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जवाब दिया जाता है कि मेरे बंदे ने मेरे साथ वादा किया, ऐसे इबादत बंदगी भी मेरी करनी है और मदद भी मुझसे मांगनी है। फिर अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, इस वादे को निभाने के बाद बंदा जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसको अता कर दूंगा। चुनाचे ये अल्लाह से हम कलामी नमाज की हालत में हर बंदा करता है। इससे नमाज को मोमिन की मिराज कहा गया, क्योंकि ये मिराज की रात का तोहफा है। फिर उलमा ने इस पर अजीब बहस की है। जब आप आसमानों पे गए आपने फरिश्तों को देखा, एक जमात हालत क़याम में खड़ी है, अल्लाह की हमदो सना कर रही है। जिब्रील नबी ने बताया पैदाइश के दिन से लेकर क़यामत तक ये जमात ऐसे क़याम में रहेगी। दूसरी जमात रुकू में थी, तीसरी जमात सजदे में थी, चौथी जमात फरिश्तों की कादा तहियात की शक्ल में थी। फरिश्तों की इन 4 जमातों की इबादत मेरे आका को बड़ी पसंद आई। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब आपको फरिश्तों की जमात तो ये इबादत का जो तर्ज है आपको अच्छा लगे, हम आपको 2 रकात ऐसी अता करते हैं जिसमें फरिश्तों की सारी जमातों की इबादत शामिल होगी। तुम्हारे 2 रकात में क़याम भी होगा, तुम्हारी 2 रकात में रुकू भी होगा, सजदा भी होगा, कादा भी होगा। तो गोया कि फरिश्तों की चारों जमातों की नमाज और तर्ज इबादत हमारी 2 रकात में मौजूद है। इसी जो नमाज हमें मिली है ये फरिश्तों की इबादत का ये अक्स है। तो आज से कर रहा हूँ एक तो ये बात। दूसरी चीज जो रात मिराज का तोहफा है वो ऐलान था, फरमाया कि मेरे महबूब अपने उम्मत को ये बता दीजिए कि जो शख्स कलमा पढ़कर मेरी उलूहियत, मेरी वहदानियत और मेरी तौहीद का इकरार और इतराफ और ऐलान करेगा मैं उसको लाज़मन जन्नत अता फरमाऊंगा। मुसलमानों खुश नसीब हो कि हमने कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की इकरार कर लिया है। इस अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह,
دخل الجنہ. جس سے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، ایک اللہ پروردگار. جس نے اللہ کی توحید کو مان لیا داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا. اور تیسری چیز جو معراج کی رات نصیب ہوئی وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن رسول سے لے کر اینڈ تک، یہ اصل میں دعا کا ایک مضمون ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا سرکاری مضمون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا. آپ کا جو امتی ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگے گا، اس کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں لگے گی. تو گویا یوں سمجھ لیجئے یہ ایک دعا کا سرکاری مضمون ہے. لہذا یہ تین تحفے ہیں معراج کی رات کے: نماز، عقیدہ توحید کا اعتراف اور اعلان، اور تیسرا یہ دعا کا مضمون. دوستو یہ معراج تو کاش کہ ہم بھی نبی السلام کی لائے ہوئے تحائف کی قدر کرتے اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے، اور یہ یقیناً نماز کی برکت سے ہماری مشکلات حل ہو جاتی اور ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ بھی عاجزی کی انتہا ہے کہ اپنے پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے بندہ. اسی علماء نے لکھا سجدے کرنے والا بندہ یہ ذہن میں سوچے اور یہ تصور کرے میں نے اپنا سر اپنے پیشانی اللہ کی رحمت کے قدموں میں رکھ دی ہے. یہ عاجزی کی انتہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو یہ واقعہ معراج جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. تبھی تو امت نے اس کو آپ کے معجزات میں شمار کیا. پھر خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اکبر کا لقب ملا اس واقعہ معراج کی تصدیق کا نتیجہ تھا. چونکہ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ واقعہ میں نے جا کر بتانا ہے، لوگوں نے تو ماننا نہیں ہے، تو کون تصدیق کرے گا؟ تو جبریل امین نے کہا اس واقعہ معراج کی ابو بکر تصدیق کرے گا، اس سے وہ صدیق ہے. تو یہ صدیق اکبر کا جو لقب ملا ہے اسی واقعہ معراج کی تصدیق کے نتیجے میں ملا ہے. دوستو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ واقعہ بیان ہوا، پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے سوالات شروع کر دیا، اچھا اگر بیت المقدس میں آپ گئے ہیں ہمیں بتائیے کہ وہاں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے گارڈن کتنے ہیں، اس کے روشن دان، اس کی الماریاں اور ونڈوز کتنی ہیں. سوالات شروع کر دیے. اس پر آپ قدرے پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، معراج ہم نے کروایا اور دلیل ہم فراہم کریں گے. ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیے اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، فاصلے سمٹ گئے. فرمایا جو پوچھتے جائیں آپ دیکھ کر بتاتے چلے جائیں. اس طریقے سے آپ نے ان کے سوالات کے جوابات بھی بیت المقدس کو دیکھ کر بتا دیے. آخرکار اور اس واقعہ معراج کو امت نے تسلیم کیا اور آپ کے معجزات میں شمار کیا. تو یہ ہے وہ واقعہ معراج. چونکہ واقعی تنگی تھی، موسم کی خرابی، میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے چلے. تو سامعین محترم، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی دامت برکات عالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہم ان کا بھی فوری بیان شروع کروانا چاہتے ہیں تاکہ کہیں زیادہ کہیں دوبارہ بارش نہ ہو.